I'll just give a brief introduction about your good self and then we can start, right? Okay. Oh, sure. Thank you. So, good afternoon, everyone. Today, we are fortunate to have among us uh, Dr. Gautam Talukdar, who is presently working as scientist E, and he's also head of Protected Area Network with WII, and he has worked in several national and international level projects. He has got specialization in geoinformatics, ecological modeling, biodiversity informatics. And we are very fortunate to have him among us. Uh, he will be briefing us about the management effectiveness evaluation in protected areas of India. So, Dr. Gautam Talukdar, I welcome you once again. We have a group of attendees. Most of them, they are working with the wildlife wing, and we also have got faculty from Himachal Pradesh Forest Academy and along with the range officer trainees of uh, Forest Academy from Sundarnagar. So we will be very fortunate uh, by having you with us, and we'll be enlightened by your gracious presence and your views on the management effectiveness evaluation. So with this introduction, I hand over this stage to you. Please. Thank you. Thank you, Nishanji. And it's indeed a pleasure to be speaking to you all. Though I am a little disappointed because I could not be there in person. I had other personal commitments, and it would have been really great if I could have been there. But my colleagues would be there tomorrow, and hope you enjoy the session in person much more as opposed to the online session. And I'll just share my presentation. We'll talk about the overview of management effectiveness evaluation. However, before I start, let me tell you that I want this session to be as interactive as possible. So you can expect me to call your names regularly. So it could be anybody that I would end up calling. It could be Jaipal ji, Jagdish ji, Menka, Mrityunjay, anybody. Okay. And I expect that we can have some one-to-one conversation. So just give me a minute to start my presentation. Okay, are you all able to see the presentation? Yes. 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 Perfect. Wonderful. So the title of the talk is Overview of Management Effectiveness Evaluation, and इसको short में we call it MEE. Or I will speak mainly with a focus on national parks and wildlife sanctuaries. बाकी बहुत चीजों का भी MEE हम करते हैं, but right now we will not get into the details of it. So आगे नहीं बढ़ रहा है. There are these some glitches which always happen है ना, जब भी हम कुछ वो करते हैं. फिर से let me try to share it once again. ये नहीं बढ़ रहा.
ये बोला था किसी को पानी है? Alternately, you can send it to me by WhatsApp or by Yeah, email. yeah, Then, I think I'll share that thing with you. right, and then I can start sharing it. Yes, huh. Just give me a minute. I'll share it on WhatsApp with you. Right, right. Meanwhile, the presentation is received. I would like to inform the attendees that uh, just to keep engaged, that we are actually celebrating a 2-day Vishwa Dharohar Utsav here at Great Himalayan National Park at Sai Rupa. Dr. Gautam Talukdar, who I have just introduced, we would have wanted that it would have been possible for him to attend this conference in particular with us in physical form. So we would have been glad. But in fact, he was not able to share, he was not able to have his time with us. So we wanted to have this online session. Actually, for maybe the forest academy trainees, they may not be aware what this management effectiveness evaluation is. I'd like to inform that all the protected areas, they are actually evaluated for their effectiveness, how well they are managed, how well their documentation is done, what sort of protection measures are being done in that particular protected area. And I'm very proud to tell that Great Himalayan National Park was #1 in the country when this last management effectiveness evaluation was done by WII. So I have shared it. Cancel this. Have you received, Nishant? Yeah. So maybe you can make it to the full screen. So we can go off to the first slide. So पहले तो let us briefly speak about protected areas. They are globally recognized as major tools for in situ conservation of biological diversity. And there is something called as World Database on Protected Areas, WDPA. वो जो है सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल डेटाबेस है ऑन बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज मरीन पीएस और रफली
protected areas in the world cover about 15% of the terrestrial surface and about 7.6% of ocean area. तो आप लोग ये साइट देख सकते हैं protectedplanet.net. और इंडिया में we have about 900 protected areas which cover approximately 5% of the geographical area. और इन protected areas में भी, we can go to the next slide. In protected areas में भी there is जो conservation और community reserves है, they are a lot in terms of numbers, but in terms of area बहुत ही कम है. So अब protected area, अब the new framework that is coming was 2020 biodiversity framework. उसके हिसाब से every country needs to safeguard about 30% of the area, both of land and marine, as protected. लेकिन सिर्फ किसी एरिया को प्रोटेक्ट करने से काम नहीं चलता. यू एंड अप डिक्लेयरिंग इट एज प्रोटेक्टेड एरिया, लेकिन जिस वजह से दैट एरिया वाज क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नोबडी एंड्स अप चेकिंग इट. तो बस एक पेपर में आ गया प्रोटेक्टेड एरिया हो गया एंड पीपल फॉरगेट अबाउट इट और बोलते हैं कि हमने इतना जगह बचा लिया. सो दिस इशू ऑफ whether the protected areas are being managed properly or rather the management effectiveness was first highlighted in a World Park Congress in Caracas, Venezuela, 1992. तो ये वर्ल्ड पार्क कांग्रेस होता है, IUCN एक बॉडी है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लोबल बॉडी है. सो दे हैव ऑर्गेनाइज दिस वर्ल्ड पार्क कांग्रेस एवरी 4 years. और जो फर्स्ट पार्क कांग्रेस था वेनेजुएला में, इट वाज हाईलाइटेड. एंड ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन इज एन इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज इवैल्यूएशन. और इंडिया इज वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू कंट्रीज विच हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द एमई प्रोसेस. मतलब किसी का मर्जी हुआ और करते हैं ऐसा नहीं है, सिस्टमैटिकली रेगुलरली एमई प्रोसेस होता है for evaluation of its natural world heritage sites, national parks and wildlife sanctuaries, and also tiger reserves. Next slide. अब ये इंडिया में एमई शुरू क्यों हुआ? सब लोगों को पता है सरिस्का का कहानी. मनोज, आर यू देयर? अच्छा. जयपाल, any person can tell me what happened in Sariska? उसके बाद यहाँ हाँ, योगेंद्र जी बताइए. हेलो. Anyway, I can't hear you. But what happened is सरिस्का टाइगर रिजर्व से टाइगर गायब हो गए. और जब टाइगर गायब हो गए, पेपर में तो थे टाइगर, लेकिन इन रियलिटी देयर वाज नो टाइगर. और जब ये हुआ, सो देयर वाज अ डायरेक्टिव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू 2 ऑफिसेस. एक तो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, सबको ही पता है, एंड द अदर वाज टू MOEFCC to conduct an independent audit and place a report in the parliament. अब ये तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है. CAG को डायरेक्टिव मिलना PMO से लॉजिकल था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सोचता है कि हम क्या ऑडिट करते हैं इसमें. बट एनीवे, नेक्स्ट स्लाइड. ये एक टास्क फोर्स बना और ये टास्क फोर्स टाइगर टास्क फोर्स कहलाता था.
and it was mandated to figure out कि क्या what exactly went wrong. तो उनको मिला कि there was a complete breakdown in internal management system of the park. There was a faulty and fudge system to count tigers, number of tigers, as a result of which the tigers were disappearing, but were present in the census. And there was a complete breakdown in relation between the park management and the local villagers. और वहां पे टाइगर फिर रीइंट्रोड्यूस किया जाए only after corrective actions have been taken. So now, next slide. Coming back to our original logic, कि जब हमारे पास बेसिकली जब MoEFCC के पास आया कि आपको ऑडिट करके देना है, एक टाइगर टास्क फोर्स ने तो उसका रिपोर्ट दे दिया, लेकिन ऑडिट करना है तो द मिनिस्ट्री सेंड दैट थिंग टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बताया कि आप जो है इसका ऑडिट का प्रोसेस कीजिए. वी वर ऑल्सो कंफ्यूज, सभी लोगों की तरह, कि हम क्या ऑडिट करेंगे, ये तो CAG करता है. एंड देन लाइक everybody goes to Google, even in Wildlife Institute of India, we went to Google to figure out कि क्या हमको करना चाहिए. Typically, जब ऐसे kind of something goes wrong, we do a process of review. Review is basically a formal kind of examination by a competent authority to see whether the system can be improved or corrected. And जो हम समझते हैं, it is basically whether we have achieved our physical and financial targets. Inquiry करते हैं, asking questions to gain a certain kind of information. And ऑफिशियली हम नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कभी भी करते हैं टू बेनिफिट द पब्लिक. उनको क्या एक्चुअली घटना हुआ है वो पता चलता है. मॉनिटरिंग इज यूजुअली अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो हम कोई पर्पस अचीव करने के लिए करते हैं ओवर अ पीरियोडिक इंटरवल. एंड लास्टली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आज के डेट में ऑफिशियल पार्लेंस में हम RFD भी बोलते हैं, रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, which records people's mandate and its implementation by the department. तो ये टिपिकली जो चीजें हैं हम यूज करते हैं फॉर एनी कोर्स ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ गवर्नमेंट एक्शन. नेक्स्ट. तो अब हम जाते हैं जो एक्चुअल हमको काम करने कहा था, दैट इज एन ऑडिट. अब ऑडिट का डेफिनेशन बड़ा वो है कि इट इज एन ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस एक्टिविटी designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization to accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to assess and improve the effectiveness of risk management, control and governance process. तो ये तो डेफिनेशन हुआ. एंड ऑडिट का नाम सुनते ही वी ऑल गेट वर्कड अप कि अरे बाबा अब हजारों क्वेश्चन होते हैं एंड वी नीड टू comply and we have to just somehow get rid of the audit. However, note a distinction is made between regularity of financial auditing. तो financial auditing जो होता है वो बड़ा clear है. It focuses on compliance with applicable statutes and regulations. तो ये काम financial audit होता है. लेकिन performance audit जो होता है, it is concerned with relevance, economy, efficiency and effectiveness. तो बेसिकली हमको ये चीज देखना है कि परफॉर्मेंस कैसा है ये नेशनल पार्क का. इट इज नॉट अबाउट द फाइनेंशियल ऑडिट बट इट इज मोर अबाउट द परफॉर्मेंस ऑडिट एंड हाउ वी कैन improve the economy, efficiency and effectiveness of the functions. तो इंटरनल ऑडिटिंग प्रोवाइड्स असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. तो रेगुलरली इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, undertaken by unit reporting to the management. लेकिन external auditing is conducted by an independent organization. So typically
we can go to the next slide. What we understood is the government was expecting a performance audit from us, and preferably this performance audit should be carried out by an external agency, which is an independent agency. So, up as a park of the wildlife wing, you belong to the various protected areas. Internal evaluation भी कर सकते हैं आप, लेकिन from time to time there is an independent external evaluation which happens. And ये independent evaluation जो है is carried out by entities and persons free of control of those responsible for the design and implementation of development and intervention. So it needs to be an independent body. And जो most important चीज यहाँ पे है that the credibility of the evaluation depends in part on how independently it has been carried out. Independence implies freedom from political influence and organizational pressure. It is characterized by full access to information and full autonomy in carrying out the investigations and reporting the findings. तो ये जो हमारा any process होता है, it has to become completely independent. I'll tell you how those things have been achieved in a short while. Can go to the next slide. And ये last important definition है हमारा. It is an basically accountability. It is an obligation to demonstrate that the work has been conducted in compliance with agreed rules, standards, or to report fairly, accurately on performance results vis-a-vis mandated roles or plan. So ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. सो द पॉइंट इज एक ऑडिट आप या परफॉर्मेंस evaluation you cannot do unless there is some basic groundwork which has been laid. There is agreed rules or standards. I'll give you an example. जब सरिस्का वाला कांड हुआ and we lost all our tigers there, तो जो पहला काम किया सरकार ने was to suspend the chief wildlife warden. और उसके बाद सब्सिक्वेंटली वो डीएफओ को भी सस्पेंड कर दिया. बट द पॉइंट इज बिफोर सस्पेंशन ये नहीं सोचा was the chief wildlife warden actually responsible or merited the suspension. So what was the agreed rules or standards which were set before to make the chief wildlife warden accountable? तो डायरेक्टली उनको जब सस्पेंड कर दिया वो तो बस कुछ करना है इसीलिए इमीडिएटली वी एंडेड अप सस्पेंडिंग. बट वाज दैट द राइट थिंग टू डू? तो आइडियली फॉर एनी परफॉर्मेंस ऑडिट वी हैव टू हैव बेसिक अग्रीड रूल्स. सो वेयर आर आर बेसिक अग्रीड रूल्स? कैन वी गो टू द नेक्स्ट? The basic agreed rules come from the point that we should have a management plan for the protected area, and whether in any form the chief wildlife warden is actually directly to be held accountable for the implementation of the management plan. So if we go into depth, we will realize that yes, for certain things, maybe the chief wildlife warden is accountable. That is in terms of the financial flows to the park. But in terms of performance, it is not directly his job. It is of the park manager. And maybe there are some external forces like money, or maybe some places there are anti-social elements like Nakshals and etc., wherein
the park management is not able to do. But in absence of those, the park manager is basically responsible to ensure the performance of the park. So what is the purpose of the evaluation? Evaluation का purpose ये नहीं है कि fault finding है. Of course, it is very, very important in the financial audit, wherein the applicable statutes have to be followed, the financial rules and regulations need to be followed. But the purpose of evaluation has got many dimensions to it. Yes, whether the park is doing its intended functions is a very important thing. But it also helps to identify the changes or identify the trends in the natural resources and environments and finding out the probable drivers for it. It gives us an opportunity to reflect in our management कि हम अपने management को किस हिसाब से ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. Helps us to learn from our mistakes क्योंकि जब कुछ गलत होता है, we rarely end up documenting it. This process helps us documenting it and basically ensures कि जो हमारी गलती हुई है वो हम रिपीट ना करें और उसको इम्प्रूव करें इन फ्यूचर. नेक्स्ट. The purpose of evaluation also helps in effective resource allocation. कि हमको समझ में आता है कुछ जगह हमको कम जगह चाहिए, पैसे चाहिए थे, कुछ जगह ज्यादा. It can, help us in kind of mid-course corrections also. It helps us identify priorities for actions. किस जगह पे हम कम खर्च कर रहे हैं, किस जगह पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, किस जगह पे हमको कम खर्च करना चाहिए. Shows the real resource needs. Helps in promoting accountability and transparency. ये जो document है, which finally comes out, it's a public document. In fact, आपको GHNP का भी document जो है ऑनलाइन वाइल्ड इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से मिल जाएगा. In fact, maybe towards the end of the presentation, I will also share the report for Great Himalayan National Park अगर आप लोगों को देखना है. So we come to the next slide. And this evaluation can also help us involving the community and build constituency and promote protected area value. तो ये रिपोर्ट अगर आप लोकल लोगों को दिखाए, you can actually get a lot of community participation also. In fact, जो remote areas, in fact, most of the places in Himachal Pradesh are quite remote, and we all know that without the help of the local communities there, it becomes very difficult to manage the parks because of the high elevation and almost non-existence of roads. So next. Can we go to the next? अटक गया. Okay. So now let us go into the specific terminology, management effectiveness evaluation. जो आज के डेट में जो गाइडलाइंस है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, उसके हिसाब से it is an assessment of how well a protected area is being managed, primarily the extent to which it is protecting values and achieving the goals and objectives of that particular protected area. And it contains many other issues related to it, design issues, कि ये पार्क कहाँ पे है, लोकेटेड है, उसका कितना बड़ा या छोटा पार्क है, appropriateness of the management systems and processes, and lastly delivery of the protected area objectives including conservation value. तो हर एक protected area conservation तो करता ही है, प्लस और भी उसका कुछ additional objective है तो वो fulfill कर रहा है या नहीं. For example, GHNP में जो other
values are basically flowing for something called as outstanding universal values, जिसके वजह से वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना. तो नेक्स्ट. So it addresses the following two questions. Effectiveness of the coverage, कि कितना बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड है प्रोटेक्टेड एरियाज में, एंड कितना वो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहा. नेक्स्ट. And typically, these are the people who are interested in the management effectiveness information. Basically, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के एजेंसीज जो है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो, ताकि वो फंड अकॉर्डिंगली अलोकेट कर सके. मैनेजर्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोटेक्टेड एरिया, इट हेल्प्स देम कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लोकल कम्युनिटीज का वो भी साथ मिल जाता है इस वजह से. फंडिंग एजेंसीज जो है, if you have a proper management effectiveness evaluation ka report, international organizations are willing to fund based on this report that is there. It is a very sound document. तो वो दिखा के आप स्पेसिफिक एरियाज के लिए डिमांड कर सकते हैं, प्रपोजल लिख सकते हैं. आई एम श्योर जेफ का प्रोजेक्ट आ रहा है हिमाचल में, सो यूजिंग द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस रिपोर्ट you can choose to work on specific objectives. And there is also reporting to international conventions, चाहे वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हो यूनेस्को का या CBD का रिपोर्टिंग, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So basically we have followed the IUCN framework system. Design systems में specifically आ जाता है two stuff, which is context and planning. I will discuss them in a diagram. फिर उसमें आ जाता है कि साइज क्या है प्रोटेक्टेड एरिया का, शेप कैसा है, उसका बफर जोन है या नहीं, इकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है. बहुत छोटे पार्ट्स हो जाता है तो वो डिजाइन फेलियर हो जाता है, कॉरिडोर्स है या नहीं है, फ्रैगमेंटेशन कैसा है, बहुत कुछ आ जाता है. अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस में इनपुट्स और प्रोसेसेस आता है, और इसमें आ जाता है कि मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी कहाँ है, कहाँ से इन्वेजिव स्पीशीज निकालने हैं, कहाँ पे आग लगानी है, कहाँ पे बुझानी है, ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय कैसा करना है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है या नहीं है ना, लोकल कम्युनिटीज को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, और डिलीवरी में आउटपुट्स एंड आउटकम्स होते हैं. दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या अचीव किया. नेक्स्ट. बहुत टाइप के अप्रोचेस है ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस टेस्ट करने के लिए, और आज के डेट में 3 टाइप के अप्रोचेस हम नॉर्मली फॉलो करते हैं. And the first is the in-depth evidence-based assessments aimed at monitoring system, long-term understanding. और इसमें जो है स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं एनहांसिंग आवर हेरिटेज जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए कर सकते हैं, और इसमें काफी टाइम लगता है, 6 महीने से साल भर निकल जाते हैं इसको प्रॉपरली असेस करने के लिए. Then there is something called as system-wide peer-based assessment. ये WWF ने डेवलप किया था, लेकिन ये इंडिया में हम खासतौर यूज नहीं करते हैं. And last is the scorecard expert-based assessment data collection method, which is most commonly used in India, and it takes anywhere between 3 to 5 days to conduct these kind of assessments, जो हम नॉर्मली प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए करते हैं. नेक्स्ट.
तो ये जो है, दिस इज द फ्रेमवर्क. द फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे बाहर वाले सर्कल में, तो लिखा हुआ है डिजाइन एंड प्लानिंग. द सेकेंड इज एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएटनेस एंड थर्ड इज डिलीवरी. तो ये तीन चीज के लिए हमने पहले बात किया है. बट नाउ विद इन ईच ऑफ देम, डिजाइन एंड प्लानिंग के अंदर फिर दो दो चीज आते हैं. तो डिजाइन एंड प्लानिंग के अंदर वी हैव कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट मतलब स्टेटस एंड थ्रेड्स ऑफ द नेशनल पार्क वेयर वी आर नाउ. द आज के डेट में क्या हमारे वैल्यूज है, क्या स्टेटस है, क्या कहां कहां से प्रॉब्लम्स है. द सेकेंड पार्ट इज प्लानिंग विद इन द डिजाइन एंड प्लानिंग, कि आज के डेट में हम कहां पे है एंड वेयर डू वी वांट टू सी आवरसेल्व्स इन फ्यूचर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमारा जो मैनेजमेंट प्लान होता है, डॉक्यूमेंट फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले कॉन्टेक्स्ट. द थर्ड सेकेंड पार्ट जो है एडिक्वेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस, इसमें जो भी हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट प्लान, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द इनपुट्स वी नीड, वेदर वी नीड मनी, वेदर वी नीड कैपेसिटी, वेदर वी नीड कम्युनिकेशन, क्या चीज हमें एक्चुअली जरूरत है, वेदर वी नीड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, वेदर वी नीड क्विक रिस्पॉन्स टाइम, है ना. वो सब जो इनपुट्स है वो हम इसमें एसेस करते हैं. द अदर पार्ट इज प्रोसेस. प्रोसेस क्या होगा इस मैनेजमेंट के लिए, ये अचीव करने के लिए. एंड द लास्ट पार्ट इज डिलीवरी, जिसमें आउटपुट्स होते हैं और आउटकम्स होते हैं. तो आउटपुट्स तो बेसिकली आर टारगेट्स. तो अगर आपके पास टारगेट है कि इतना लैंटेना का एरिया हमको निकालना है, या इतना प्लांटेशन करना है ना, इतना इतना एरिया पेट्रोलिंग करना है. सो इफ यू हैव अचीव्ड दोस टारगेट्स, देन दोज आर योर आउटपुट्स. बट आउटकम्स आर वन स्टेप अहेड ऑफ दैट. इसका मतलब ये है कि आपके आउटपुट्स तो हैं, लेकिन वो आउटपुट्स जो है, आपका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है, वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू मे अचीव ऑल योर टारगेट्स, कि हर साल आपका, मान के चलिए कि इन्वेजिव स्पीशीज आपको 4-4 हेक्टेयर निकालने हैं, और वो आउटपुट तो हर साल आप दे रहे हैं, लेकिन आउटकम्स में क्या आपका ओवरऑल एरिया ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखना है. सो इफ दैट आउटकम of actually reduction of invasive species over a period of time is not happening, that means that you need to change your strategy. तो यही हम देखते हैं, and this is in a systematic global framework. आगे चलते हैं. Now I will talk about how we implemented this thing for द कंट्री. आई टोल्ड यू बहुत ही कम कंट्रीज है जो सिस्टमैटिकली ये करते हैं काम. सो बिकॉज दिस इवैल्यूएशन हैड टू बी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वी कॉन्स्टिट्यूटेड 20 इंडिपेंडेंट टीम्स. जब मैं बोल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूटेड 20 इंडिपेंडेंट टीम्स, इट मीन्स दैट द पीपल शुड हैव द एक्सपर्टीज, but they should not be related to the protected area and they should not also be related to the state. तो हम क्या करते हैं, जो रिटायर्ड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं, उनका चेयरमैनशिप में हम एक टीम बनाते हैं. सो अगर कोई केरला का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रहा है, तो उसको मान लीजिए हम हिमाचल का दे देते हैं टीम, कि आप हिमाचल का जो टीम है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, उसका आप चेयरमैन रहेंगे. And within that chairman, under that chairman, there are two independent experts, normally scientific experts, one from the state normally and one outside the state, agar, or sometimes both outside the state. So people who have got good scientific knowledge and backing of ecology or वो. तो
उनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पब्लिकेशंस होने चाहिए, एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द फॉरेस्ट वाला सिस्टम। एंड वन पर्सन फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो मार्किंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो प्राइमरीली टेक्निकल सपोर्ट देता है, and the team actually comes back to Wildlife Institute of India for guidance because they are marking for the entire country per se. So तो केरला का मार्किंग एक टाइप का हो गया और हिमाचल का मार्किंग दूसरे टाइप का हो गया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। So we try to get some levels of consistency between the marking systems and we advise कि इस वाले प्रोटेक्टेड एरिया को आप बेस्ट मानते हैं तो ये इस हिसाब से है, तो आप मार्किंग ऐसे करेंगे। सो वी गिव देम अ ट्रेनिंग आल्सो ऑन हाउ दैट मार्किंग शुड बी डन। और हम वो बेसिकली ये सारा चीज करते हैं थ्रू इंसेप्शन वर्कशॉप्स। नेक्स्ट द टीम जो है दे आर गिवन से नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, 10-10 के मान लीजिए प्रोटेक्टेड एरियाज दे देते हैं फॉर ईच टीम। तो 20 टीम है तो 200 प्रोटेक्टेड एरिया रफली दे आर एबल टू कैरी आउट। तो दे विजिट दीज प्रोटेक्टेड एरियाज एंड देन दे रिपोर्ट बैक। उनका डेटा कंपाइलेशन होता है, एनालिसिस होता है, और फिर एक रिव्यू ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड एनालिसिस ऑफ इमीडिएट एक्शनेबल पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद जो है इंटरनल रिव्यूज होते हैं, ड्राफ्ट रिपोर्ट जो आते हैं वो हर एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के साथ शेयर किया जाता है ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और जब स्टेट्स को हम दे देते हैं, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन टेक्स अ लुक एट इट एंड यूजुअली दैट पर्सन एंड्स अप अग्रीइंग विद व्हाटएवर वी हैव प्रपोज्ड। समटाइम्स देयर इज अ प्रॉब्लम कि जब प्रॉपर डीएफओ और there is some new person who has come in to a protected area and they have not been able to facilitate us properly. At that point of time, the chief wildlife sometimes ends up giving us some additional information at that point of time. So if those information is valid, we may take into consideration and sometimes we end up rejecting it. Lekin that is a time when the chief wildlife warden has the opportunity to communicate his thoughts on the report that has been shared. तो टिपिकली जो है हमारे पास 32 क्वेश्चंस होते हैं, where we have 3 questions from context, 9 questions in planning. प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि मैनेजमेंट प्लान के ऊपर ये पूरा रिव्यू जो है डिपेंडेंट होता है। फिर आपके इनपुट्स कैसे जाते हैं, उसमें प्रोसेसेस क्या है, आउटपुट्स क्या है और आउटकम्स क्या है। तो टोटल जो है 32 क्वेश्चंस पे इवैल्यूएशन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क के होते हैं एंड अ टोटल ऑफ 320 मार्क्स का इवैल्यूएशन होता है। नाउ हैविंग सेड दिस, there may be some questions which are not related to the park. तो मान लेते हैं एक क्वेश्चन है कि कितने विजिटर्स आते हैं साल में आपके पार्क में। तो कुछ पार्क ऐसे हैं जो एकदम कंप्लीटली नॉट एक्सेसिबल है, जैसे आपका धौलाधारी हुआ, तो वहां पे जाना एक is a challenge itself. So it is not geared for tourists, but it is primarily geared for conservation outcomes. तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस हम फिर उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, ये एक लिस्ट है हमने कौन से टाइप के असेसमेंट्स किए थे, इन डेप्थ कितने असेसमेंट्स किए हैं, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस का, रैपिड एक्सपर्ट बेस्ड स्कोर कार्ड का कैसे किया है और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट्स कैसे किए हैं। तो नेक्स्ट, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि द टाइगर रिजर्व्स जितने हैं रफली अबाउट 52 नाउ, वो उनके 4 साइकिल्स मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस के हो गए हैं इवैल्यूएशन के, और जो प्रोटेक्टेड एरियाज है अभी बस एक साइकिल कंप्लीट हुआ है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं। तो वी हैव पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, यू कैन सी फ्रॉम हियर। 2014 का पब्लिश
2015 में पब्लिश किया है, 2017 में, 2019 में. So there are a lot of reports. We can go to the next slide. So these are the various outputs from MEE और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साइट में आप देख सकते हैं इसको. नेक्स्ट. अभी जो करंट प्लान है, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, अगले महीने में 150 प्रोटेक्टेड एरियाज का नेक्स्ट साइकिल. तो हिमाचल में भी काफी पार्क्स हैं जिसके लिए टीम आएगी. देयर वुड बी ये 52 टाइगर रिजर्व्स का जो है भी साइकिल शुरू होने वाला है. एंड उसका जो मीटिंग है नेक्स्ट मंडे को होने वाला है 27 जून, और वो शुरू हो जाएगा. एलिफेंट रिजर्व्स के लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप हो रहा है जो इन प्रोग्रेस है. और जो 21-22 में जो सब मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन किया है करीब 150 प्रोटेक्टेड एरियाज का, उसका अभी रिपोर्ट राइटिंग इज इन प्रोग्रेस. सो ये जो है करंट प्लान्स हमारे वो है. नेक्स्ट. I thought I would also talk a little bit of enhancing the World Heritage Site workbook. ये बेसिकली एक टेक्निकल मैनुअल है जो वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के बेसिस में ही है. ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसका आज मतलब जिसके धरोहर के लिए आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं विश्व धरोहर का, that for that national park we should definitely have this particular framework, because ये खास तौर वर्ल्ड हेरिटेज साइट मैनेजमेंट के लिए ही है. I am also looking after the category 2 center of UNESCO at Wildlife Institute of India. तो मुझे पता है कि अभी ये जो वर्कबुक है जस्ट अपडेट हो रहा है, तो 2-4 महीने के बाद ये अपडेट हो जाएगा. एंड वंस इट इज अपडेटेड फॉर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो हमको ये करना चाहिए. एंड बेसिकली देयर आर अबाउट 12 टूल्स which can assess a range of indicators. So, and it becomes a complete assessment system right from the start. So next, मैं क्विकली बता देता हूं इसमें क्या चीजें हैं. तो जैसे हमने देखा है कि विद इन हमारा जो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस फ्रेमवर्क है, इट फोकसेस ऑन डिजाइन, एडिक्वेसी एंड डिलीवरी. तो और फिर जो सब यूनिट्स है छोटे उसके ऊपर, तो यहाँ पे जो है हमारे पास हर एक चीज के लिए एक एक टूल सेट है. जैसे कॉन्टेक्स्ट के लिए एक टूल होता है सेपरेटली विच इज आइडेंटिफाइंग साइट वैल्यूज एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड टूल जो है आइडेंटिफाइंग थ्रेड्स, तो वो पूरा डिटेल में बताता है कि आपको ये करना कैसा है. फिर टूल 3 में जो है रिलेशनशिप्स विद स्टेक होल्डर्स एंड पार्टनर्स. एंड टूल 4 में रिव्यू ऑफ नेशनल कॉन्टेक्स्ट. तो ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इट इज नॉट जस्ट लोकल ना, नेशनल कॉन्टेक्स्ट है, इंटरनेशनल भी देखना होता है. तो एक टूल जो है नेशनल के लिए विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल कैसा है वो देखता है. प्लानिंग में जो है इट इज ऑल अबाउट असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग कि किस हिसाब से मैनेजमेंट होता है. और डिजाइन का भी असेसमेंट है. पार्क का जो डिजाइन है कि कहाँ लोकेटेड है, शेप क्या है, साइज क्या है, बफर है, उसके लिए पूरा असेसमेंट एक इंडिपेंडेंट होता है. इनपुट्स के लिए असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट नीड्स एंड इनपुट्स. प्रोसेसेस के लिए 8वां टूल जो है असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेसेस. नेक्स्ट. एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड. टूल 9 जो है वो असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेशन, किस हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रहा है. टूल 10 जो वर्क साइट आउटपुट इंडिकेटर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो टारगेट्स आपने क्या अचीव किए हैं. और आउटकम्स तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको. मॉनिटरिंग एंड असेसिंग ऑफ आउटकम्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, मतलब जो आपको डिजायर्ड चाहिए वो हो रहा है या नहीं है. And also with respect to the outcomes of the management objectives. So these are the various things that we end up working on. और ये इसी के साथ मतलब
I know our time is up. I'll stop here, but if there are any burning questions, I can take them. And Nishanji, maybe I can share with you a copy of the GHNP review on your WhatsApp, and you can quickly show them that how a typical report ends up looking. So with this, I come to the end of presentation. Thank you. Are there any questions or thoughts that you want to ask? Hello. पार्टिसिपेंट्स में कोई क्वेश्चन कोई भी पूछना चाह रहा है किसी भी तरीके का? काफी लोगों के पास तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस का टीम भी आया होगा, उनका भी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह कुछ शेयर अगर करना है तो। Jain sir, जय हिंद। sir, as you told during this management and this effective evaluation, there is various indicator that you use. Sir, does it also include the local participation, those forest dwelling communities, their viewpoint, how they see forest, and how is that indicators a part of your evaluation? Yes, it is. And in fact, we try to have a meeting with the community also. तो normally हम जो फील्ड डायरेक्टर है या रेंज ऑफिसर है उनको हम बता देते हैं कि और rather the team which comes वो बता देते हैं कि we want to have a discussion with the local people, local stakeholders. तो normally एक आधा दिन का मीटिंग कर लेते हैं उनके साथ भी. And it also helps to सी द अगर लोकल रिपोर्ट्स अगर है ना, जैसे न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स कटिंग्स और वो सब अगर आपने रखे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इवन दैट वी टेक इनटू अकाउंट कि ये जो पार्टिसिपेशन किया है, न्यूज़पेपर का क्लिपिंग किया है कि यू हैव हैड इंटरेक्शंस विद द लोकल कम्युनिटी एंड दे हैव बीन एंगेज्ड, सो ऑल दोस थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. बट सम प्लेसेस वी आल्सो स्किप द क्वेश्चन, क्योंकि जैसे उत्तराखंड के कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे हैं कि वो एकदम बॉर्डर में है, वहां पे कोई विलेज ही नहीं है, तो सिर्फ आर्मी वाले जाते हैं, तो उस टाइम पे हम उनका नहीं ले सकते. Thanks. So, I hope I have answered your question. Yes. Thank you. तो निशान जी, मुझे लगता है कि 5 बज गए हैं, लोगों का सैचुरेशन पॉइंट आ गया है. So what I will do with you is I'll share with you that GHNP का जो रिपोर्ट है हमारा, and it would be useful for you also, जो handy copy at any point of time. So if you have time, you can share with them at some point of time. श्योर. तो मुझे लगता है कि अभी और कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं यदि आप लोगों को वो रिपोर्ट चाहिए होगा तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी. जो हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन का जो जीएचएनपी वाला क्वेश्चन होगा, जीएचएनपी वाला जो हमारा इवैल्यूएशन का रिपोर्ट होगा, वो शेयर किया जा सकता है. और जैसा ये अभी क्वेश्चन इनका था, तो मैं वैसे बताना चाहूंगा कि मैं एक बार जो प्रोटेक्टेड एरिया में मतलब चंबा में आई वाज पोस्टेड देयर, तो उस तरीके का उस समय रिकॉर्ड के लिए जो है, इट इज ऑल एविडेंस बेस्ड सिस्टम. तो आपको जो है उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है पेश करने होते हैं कि अगर आपने कहा कि मैं कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट किया, तो आपने कम्युनिटी के साथ क्या क्या इंटरेक्ट किया, वो उस तरीके की या तो आप अटेंडेंस रजिस्टर दिखाएंगे, या फिर आप दिखाएंगे कि मेरा ये न्यूज पेपर का क्लिपिंग है, या आपका फेसबुक के ऊपर पेज है, आपका जो डिसेमिनेशन का सिस्टम है, या आपका पेट्रोलिंग का क्या सिस्टम है, या आप एम स्ट्राइप्स यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह. आप इस तरीके का जो एविडेंस है उसमें पेश करते हैं. तो मैं अब धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर गौतम तालुकदार जी का. उन्होंने बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया कि मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन क्या है, कैसे होती है, किस कारण से किए गए हैं, क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं, और जो सिस्टम्स हैं, जो अप्रोचेस हैं, जिसके बेस के ऊपर ये इवैल्यूएशन की जाती है, इसका फायदा किस लोगों के लिए है, मैनेजर्स को
इसका इवैल्यूएशन का क्या फायदा होगा, या डिसीजन मेकर्स के लिए इस इवैल्यूएशन का क्या फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें जो हैं डॉक्टर गौतम तालुकदार ने बहुत अच्छे से आपको बताई। मैं इनका एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा, और होप वी मीट समटाइम सून, और उसके बाद जो है एक बार पुनः जो है कोई ऐसी और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।